اللہ کا فیضان ہے رمضان، انسانیت کا ایمان ہے رمضان، عبادت عشق ہے رمضان، ملت محبت کا پیغام ہے رمضان۔ نمسکار، آپ کے ساتھ ہوں میں خوشبو مشرا اور آپ بھارت سماچار پر دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص کارکرم رمضان مبارک۔ اسلام میں سب سے پاک مہینہ ہے رمضان۔ رمضان میں ہی پوتر قرآن اوترت ہوا۔ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، اس میں عبادت کا بڑا مہتو ہے۔ عبادت کے ساتھ ہی رمضان دوسروں کی مدد کا بھی مہینہ ہے۔ رمضان میں دعاؤں کا بھی سب سے الگ مقام ہے۔ رمضان محبت ہے اور ایمان کا بھی پیغام دیتا ہے۔ اس پاک اور مبارک مہینے میں ہم ہر دن آپ کے لیے لے کر آئیں گے بھارت سماچار کی خاص پیشکش اور خاص پروگرام رمضان مبارک، جس میں دکھائیں گے رمضان کی خوش رنگ تصویریں، اس کے ہر پہلو سے آپ کو کرائیں گے روبرو، ساتھ ہی بتائیں گے آخر کیوں ہے اس پاک مہینے کی سب سے زیادہ اہمیت۔ اللہ کا فیضان ہے رمضان، انسانیت کا ایمان ہے رمضان، عبادت عشق ہے رمضان، ملت محبت کا پیغام ہے رمضان۔ رمضان کے اس پاک مہینے میں ہر کوئی عبادت کو اپنی زندگی میں اتارتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزے رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے اور غریبوں کی مدد کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے۔ فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، یہ ہدیہ تشکر ہے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشاں ہوگا۔ رمضان کے پہلے عشرے کا کل آخری دن ہوگا، یعنی بدھوار کو اس رمضان کا پہلا عشرہ مکمل ہو جائے گا۔ پہلی رمضان سے 10 تاریخ تک عشرے کا پہلا دور ہوتا ہے، جس کی اپنی الگ اہمیت ہوتی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے بے حد اہمیت والا ہوتا ہے۔ 30 دنوں تک روزے کے دوران 3 عشرے مکمل ہوتے ہیں، یعنی اسلام کے مطابق پورے رمضان کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے، جو پہلا، دوسرا اور تیسرا عشرہ کہلاتا ہے۔ اگر آپ مذہب اسلام میں دیکھیں گے تو مذہب اسلام میں جب پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو اس کے وہاں مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے 2 سال بعد، یعنی 2 ہجری میں سے مسلمانوں پر روزے اللہ نے فرض کیے، اور اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں یہ حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والوں، اے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھنے والوں، اے اللہ کی وحدانیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنے والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو۔ عشرہ ایک عربی شبد ہے۔ عربی زبان میں عشرہ 10 کی گणنا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح رمضان کے پہلے 10 دن کو پہلے عشرے کے طور پر اہمیت دی جاتی ہے۔ رمضان میں پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا مغفرت کا یعنی گناہوں کی معافی کا، اور تیسرا جہنم کی آگ سے خود کو بچانے کے لیے ہوتا ہے۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں 3 عشرے ہیں. عشرے سے مراد کی 10 دن، یعنی پہلا عشرہ جس کو کہ 10 دن کہا جاتا ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور آخری عشرہ آگ سے نجات کا ہے. یہی وجہ ہے کہ پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے جو اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے رات کی عبادت کو بہت ثواب کی چیز فرمایا ہے. رات کی عبادت سے مراد تراویح کی نمازیں ہیں، اور تراویح میں پورے رمضان بھر تراویح پڑھنا لازمی اور ضروری ہے. اور ہر روزے دار کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ نماز عشاء کے بعد، یعنی فرض اور 2 سنت اور 2 نفل پڑھنے کے بعد 20 رکعت نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے. اور تراویح میں یہ ضروری اور لازمی ہے کہ ایک قرآن مجید پورا کیا جائے. اور اسلامی شریعت میں تراویح کی 2 سنتیں بتائی گئی ہیں. ایک سنت تو یہ ہے کہ پورے رمضان بھر تراویح پڑھی جائے، اور دوسری سنت یہ ہے کہ تراویح میں ایک قرآن مجید مکمل کیا جائے. اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ مسجدوں میں 5 پارے پڑھائے جاتے ہیں، کچھ میں 3، کچھ میں 2، اور کچھ ایسی مسجدیں ہیں جہاں پر کہ 1.5 پارہ بھی پڑھایا جاتا ہے. رمضان کے مہینے کو لے کر حدیثوں میں لکھا ہے، پیغمبر محمد صاحب نے کہا، رمضان کی شروعات میں رحمت ہے، بیچ میں مغفرت یعنی معافی ہے، اور آخر میں جہنم کی آگ سے بچاؤ. شروعاتی 10 دنوں کے پہلے عشرے میں روزہ نماز کرنے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور رحمتوں کا یہ پہلا دور کل مکمل ہو جائے گا. فرمان عباس منجل، بھارت سماچار، لکھنؤ. رمضان پر اللہ کی عبادت میں نوجوان بزرگ ہی نہیں بچے بھی شدت سے مشغول ہیں. لکھنؤ میں بچوں کی روزہ کشائی یعنی پہلا روزہ رکھنے کی روایت نبھائی جا رہی ہے. پرانے شہر کی معصوم 6 سال کی افزا نے بھی اس بار اپنا پہلا روزہ رکھا. دیکھیے. بہت خوشی ہوئی کئی دن سے، مطلب پہلی رمضان سے ہی کہہ رہی تھی کہ ممی مجھے روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے. تو آج میں نے اس کو روزہ رکھوایا، جس کا پہلا روزہ تھا، اور سحری بھی میرے ساتھ ہوتی، اس نے سحری کری، پلیٹ پر کھایا یا دودھ پیا، اور نماز پڑھی اس نے میرے ساتھ. تھوڑی دیر اپنا کھیلی ویلی، مدرسے سے پڑھنے کے لیے گئی، تھوڑا سا سو ہو گئی، تو اس کو بھی بہت، اب اس کا پورا کمپلیٹ روزہ ہوا پورا. اس میں بچے نے روزہ رکھ لیا. تھوڑا سا پتہ بھی چلا اس کو دوپہر میں پیاس لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی اس نے شکر مان کے اور اچھے سے اس نے روزہ رکھ لیا. اب صبح اٹھی تھی، پھر نماز پڑھا تھا، پھر سو گئے تھے، پھر مدرسے گئے تھے، پھر وہاں پہ پڑھا تھا، پھر یہاں گھر آئے تھے تو قرآن پڑھا تھا، پھر سو گئے تھے. کیسا لگا آپ کو سارا دن؟ آپ کو روزہ پتہ چلا نہیں پتہ چلا؟
रमज़ान रहमतों का महीना है। इसमें इबादत का बड़ा महत्व है। इबादत के साथ ही रमज़ान दूसरों की मदद का भी महीना है। रमज़ान के महीने में दूसरों की मदद करने से बरकत मिलती है और ये रमज़ान की सबसे बड़ी इबादत है। रिपोर्ट देखिए। रमज़ान दूसरों की मदद का भी महीना है। इस दौरान इबादत के साथ साथ ज़कात और फित्र के ज़रिए उन लोगों की मदद की जाती है जिनके माली हालात ठीक नहीं होते। लखनऊ में नवाबीन अवध के वक्त में इस तरह की मदद के लिए रमज़ान में ख़ास इंतज़ाम किए जाते थे। लंगर और अफ्तार के साथ ही गुमनाम तरीक़ों से लोगों के यहाँ राशन और ज़रूरत की दीगर चीज़ें पहुँचाई जाती थीं। यहाँ के लोग आज भी रवायती तरीके से इस पाक महीने में ज़रूरतमंदों को राशन तकसीम करते हैं। हर तरह की इमदाद होती थी और उनके जो गरीब तबका था उसके घरों में राशन भरवा दिया जाता था ताकि वो माह सियाम में रोज़े जो हैं वो अच्छी तरह से इफ्तार कर सकें और रोज़े रख सकें। और गुरबा के लिए बहुत काम किया जाता था और फल और जिनस जिसमें चावल और आटा और रोगन यानी घी या तेल इस तरह की चीज़ें उनके घरों को पहुंचा दी जाती थी। और सबसे दिलचस्प बात और हैरत की बात और शराफत की बात ये थी कि इसको कहीं पर दिखाया नहीं जाता था और कहीं पर बताया नहीं जाता था। अब का दौर नहीं था कि अगर आप किसी बुरक़े वाली को 2 किलो आटा दे रहे हैं तो आप उसको मजबूर करते हैं कि वो तस्वीर आपको आटा देते हुए ले और वो तस्वीर आप अखबारों में छपवाएं। रमज़ान में लोगों की मदद का ये सिलसिला पूरी दुनिया में इस्लाम की शुरुआत से चला आ रहा है। लोग अपनी हैसियत के मुताबिक गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं ताकि उनकी ज़रूरतें भी रमज़ान में पूरी हो सकें। रोज़े की हालत में भूख और प्यास का एहसास करने वाले रोज़ेदार पहली रमज़ान से ही ज़रूरतमंद गरीबों की मदद के लिए आगे आने लगते हैं। जैसे कि जिन गरीबों के पास खाने का नहीं है, राशन वगैरह मुहैया कराते हैं, दवाइयाँ हैं, और भी गरीब आते हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, जिनके पास कपड़े नहीं हैं ईद में पहनने के लिए। अच्छा, पूरा महीना आदमी रोज़ा रखता है, रातों को जागता है, सुबह उठ के सैरी करने के लिए भी लोगों के नहीं होते, तो उन लोगों को हम लोग राशन है और कुछ चीज़ें जैसे कि उनके घरेलू इंतज़ाम हैं उसमें दे देते हैंगे। और जैसे हम लोग ईद के लिए निकालते हैंगे फ़ितरा, तो वो भी लोग आते हैं मांगते हैं, तो उनको भी दे दिया जाता पहले ही से ही कि बेचारे नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं पूरा एक महीना तलक के। तो और फिर राशन भी बंटता है। जैसे अब हमारा करबला की तरफ से भी यहाँ राशन भी दिया जाता है कुछ लोगों को जिनके यहाँ घरों पे नहीं। मदद के ज़रिए लोग इन गरीबों को भी रमज़ान और ईद की खुशियाँ देते हैं। इस नेक काम से अल्लाह को खुश करते हैं। इनकी दुआओं के साथ साथ अपने लिए सवाब यानी पुण्य भी हासिल करते हैं। रमज़ान बेहद पाक और नेकी करने का महीना है, इसीलिए इस महीने में नेक काम का बेहद सवाब मिलता है। फरमान अब्बास मंजुल, भारत समाचार, लखनऊ। जारी है हमारा ये खास कार्यक्रम। रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप लगातार देखते रहिए भारत समाचार। अल्लाह का फैजान है रमजान, इंसानियत का ईमान है रमजान, इबादत इश्क है रमजान, मिल्लत मोहब्बत का पैगाम है रमजान। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आपका भारत समाचार पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रमजान मुबारक। रमजान को लेकर रोजेदारों के मन में कई सवाल रहते हैं। रमजान को लेकर लोगों ने सुन्नी हेल्पलाइन पर क्या कुछ सवाल किए, उनके क्या जवाब हैं, जानेंगे मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली से। रोजे की हालत में क्या इनहेलर वगैरह लिया जा सकता है? ये रोज़े की हालत में इनहेलर लेने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि दवा पूरी तरीके से आपके जिस्म के अंदर आप इनहेल करते हैं तो उससे रोज़ा टूट जाता है। इसीलिए जिन लोगों को इनहेलर की अशद ज़रूरत है उनके लिए ज़ाहिर सी बात है सहरी से पहले और अफ्तार के बाद उसकी इजाज़त है। और जो लोग शदीद ऐसे पेशेंट हैं कि डॉक्टर अगर ये कहते हैं कि अगर आप रोज़े की हालत में अगर आप इनहेलर दिन भर नहीं लेंगे तो इससे आपकी जान को ख़तरा है, तो ऐसे लोगों के लिए गुंजाइश है कि वो रोज़े ना रखें और एक रोज़े के बदले एक फ़कीर को 2 वक्त का खाना या उसके पैसे अदा करें।
शुगर के पेशेंट को रोजा रखना चाहिए या नहीं? शुगर का मरीज अगर रोजे की हालत में इंजेक्शन ले सकता है या शुगर टेस्ट कर सकता है? पेशेंट्स के लिए बेहतर तो यही है कि पहले वो किसी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डॉक्टर से कंसल्ट कर लें रमज़ान से पहले। और हालांकि शुगर पेशेंट रोज़े की हालत में भी अपनी शुगर टेस्ट कर सकता है, और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि बेहतर ये है कि सहरी के वक्त और दिन में किसी वक्त और अफ्तार के बाद अपने या अफ्तार से पहले शुगर टेस्ट कर लें। और उससे शुगर टेस्ट करने से या कोई भी टेस्ट करने से और रोज़ा नहीं टूटता है तो रोज़ा रखा जा सकता है। और अगर बीच में इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो इंजेक्शन में कोई हर्ज नहीं है, रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाया जा सकता है, उससे रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन बेहतर यही है ऐसे पेशेंट्स के लिए कि किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से इस सिलसिले में भी मशवरा कर लें। और जहाँ तक इसका शरई हिस्से का सवाल है तो इसमें शुगर पेशेंट रोज़ा रख सकता है बशर्ते कि उसकी जान को कोई ख़तरा ना हो। क्या रोजे की हालत में अगर किसी को ब्लड डोनेशन करना पड़ जाए तो ये जायज़ है? रोजा टूटेगा तो नहीं? हालत में ब्लड दिया जा सकता है क्योंकि उससे आपके जिस्म के अंदर कोई चीज़ नहीं जा रही बल्कि जिस्म से बाहर चीज़ निकाली जा रही है, तो उससे आपके रोज़े पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और चलिए आप जानते हैं रमज़ान को लेकर लोगों ने शिया हेल्पलाइन पर क्या सवाल किए और मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने इस्लाम के नज़रिए से उन सवालों के क्या जवाब दिए। इस साल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पहला चैनल ऐसा है जो भारत समाचार है कि ये भारत समाचार ये रमज़ान के सिलसिले में प्रोग्राम शुरू कर रहा है और ये इस हेल्पलाइन को चैनल के ऊपर दिखा रहा है, जो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है और बहुत दूर तक मैसेज जाएगा। मैं समझता हूँ कि भारत समाचार का ये कदम जो है बहुत ही सराहनीय है, इसको लोग बहुत पसंद करेंगे। अब जैसे इस साल हमारे सामने सवाल आया था, एक आया था कि नियत की प्रॉब्लम होती है, रोज़े में नियत होती है, तो उसके लिए शरई मसला क्या है। तो अगर पूछा गया मुझसे कि अगर कोई इंसान पहली रमज़ान को 30 दिन के रोज़े की नियत कर लेता है तो क्या वो 30 दिन चलेगी? उसका मैंने जवाब ये दिया कि अगर कोई इंसान पहले दिन 30 रोज़ों की नियत कर ले, उसके बाद ये नियत उसकी 30 दिन तक चलती रहेगी। दूसरा सवाल ये आया कि एक इंसान शुगर का पेशेंट है, कभी शुगर अप डाउन ये सब होती है, तो क्या किया जाए। तो शुगर पेशेंट अगर अपने अंदर इतनी कुव्वत महसूस रखता है कि वो रोज़ा रख सकता है तो वो रोज़ा रखेगा। अगर उसको मालूम है कि हम रोज़ा रखेंगे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर उसके लिए रोज़ा रखना इस्लाम ने मना कर दिया है। इस्लाम ने मना किया रोज़ा आप नहीं रखेंगे, रोज़ा जो आप नहीं रखेंगे इसके लिए आपको कफ़ारा देना पड़ेगा, यानी जुर्माना। जुर्माना क्या है? 30 रुपये गरीब आदमी को खाने के लिए दे दीजिए। ये दूसरा सवाल था। तीसरा ये सवाल था कि एक साहब का फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे कहा कि मौलाना ये बताइए कि मैं रोज़े से हूँ और मुझे ब्लड चेक करवाना है, शुगर चेक करना है, कैसे किया जाए। तो अगर कोई इंसान रोज़े में खून चेक कराता है तो उसका जवाब ये है कि खून चेक कराने से रोज़ा नहीं टूटता है, बल्कि रोज़ा सही रहेगा, रोज़ा दुरुस्त रहेगा। उसके बाद एक सवाल ये आया, चूँकि हमारे फ़िरक़े में, शिया फ़िरक़े में ये है कि अगर आप रोज़ा रख के शहर से 4 फरसख यानी 20 किलोमीटर आगे निकल गए तो आपका रोज़ा टूट जाएगा, आपका रोज़ा आप नहीं रख सकते हैं। तो सवाल ये आया कि अगर कोई इंसान है जो बिज़नेस के पॉइंट से या सर्विस के पॉइंट से डेली अप एंड डाउन करता है, डेली आना जाना उसका होता है, तो उसके लिए क्या हुक्म है। तो इस्लाम ने, शरीयत ने बताया कि आप चूँकि परमानेंट सफ़र करते हैं लिहाजा आप रोज़ा रख सकते हैं और डेली आपका सफ़र जो रहता है उसमें रोज़ा रखा जा सकता है। उसके बाद एक साहब हैं, उन्होंने पूछा कि मौलाना साहब ये बताइए कि कुरान करीम में रोज़ा रखने का हुक्म कहाँ पर आया है। तो कुरान करीम का दूसरा सूरह बकर है कि जिसमें परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया है कि हमने तुम्हारे ऊपर रोज़ा लिख दिया है, यानी वाजिब कर दिया है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए भारत समाचार। अल्लाह का फैज़ान है रमज़ान,
इंसानियत का ईमान है रमजान, इबादत इश्क है रमजान, मिल्लत मोहब्बत का पैगाम है रमजान। और रमज़ान के हमारे इस खास प्रोग्राम रमज़ान मुबारक में अब हम आपको छोड़े जा रहे हैं नात कलाम के साथ। कल रमज़ान के खास प्रोग्राम रमज़ान मुबारक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अल्लाह का फैज़ान है रमज़ान, इंसानियत का ईमान है रमज़ान, इबादत इश्क है रमज़ान, मिल्लत मोहब्बत का पैगाम है रमज़ान।